Good evening, everyone. I hope all are you in good health and sounding wise. So, I expect कि आप लोग को ज़्यादा कुछ आता नहीं है financial market के बारे में and that's why we are here today to start with very basics. आपके जो भी questions होंगे speak freely. This is an interactive webinar, two-way street. सिर्फ मैं नहीं बोलूँगा. Whenever you feel like that I'm going very fast और कोई concept आपको समझ नहीं आया, please stop me there itself. Okay? Just don't let it get over you कि निकल गया तो वापस नहीं जा सकते. I'll go back, we'll go slow, and as long as you're comfortable, we'll keep moving. At any point, we can repeat, we can stop, we can move back. So, whatever your myths and doubts, we'll take it at the end of the webinar because I want first your doubt to get nurtured with whatever thought process I have, whatever I teach here. So today is not about like I'll show you some magic of learning or anything like you will earn overnight. Today is just about that share market क्या है, एक्चुअली में लोग इसमें कैसे ऑपरेट करते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, चीज़ें कैसे फंक्शन करती हैं. ठीक है, देन I'll tell you how it works and we'll take your doubts. So I think all are here, so we can continue from here right away. I'll take you to presentation, and there is a lot of material on the presentation, so please don't get too engaged in reading it. Rather listen more and at any time raise doubt. You will get the presentation later, so you can have your time with that. But for now, just please pay all your attention on whatever I say. Okay, so we'll just move to the webinar. The conversation will be both Hindi and English mix. If at any point you think that something has been missed too fast, we'll go back. Just nudge me there, okay? So let's start with the presentation. So I thought कि आप लोग काफ़ी serious mind से आए होंगे, तो मैं आप लोग को बता दूं कि ऐसा होता नहीं है, but it's just the scheme that most of the financial market gurus will give you कि आओ और यहाँ पे पैसा डबल करके चले जाओ. It's not the case. So this is all I have. The very basic first thing that you need to see that this is not true. A moment of joy for you all, but we'll continue from here. So this is the two pointer. Now most of my friends complain me that I go way too fast when I speak, so I try to put some brakes on my voice here. More than that, if you have any doubts, please stop me. Don't think that some of your doubt can be lame in your head, what others can think of it. आपके दिमाग में जो है आप में से पूछिए निडर, और मैं आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा. मैं यहाँ पे जो भी कंटेंट ला रहा हूँ गाइस, वो किसी भी 14 या 15 ईयर्स के माइंडेड के लिए सफिशिएंट है, और अगर मैं उनको नहीं समझा पा रहा हूँ तो हो सकता है मैंने ठीक से नहीं सीखा है. बिकॉज आइंस्टाइन सेड इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट टू अ चाइल्ड देन यू हैवंट लर्न योर सेल्फ प्रॉपरली. सो if after a time I'm coming with the confidence that you be with me, you stay with me, and I'll guide you through all your paths, then maybe I really have something. And with that trust and faith, you are here today to give your valuable time to me. So I'll just honor that to my best. Okay, let's go. The very first thing guys, asset and liabilities. I think हम लोग इसको अलग अलग भाषा में अपने टाइम पे समझते आ रहे हैं कि सेविंग्स करना चाहिए या फिर ज़्यादा खर्चे नहीं करने चाहिए, अलग अलग डेफिनेशंस, बट अल्टीमेटली सब चीज़ें फॉल होती हैं एसेट एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर में. ठीक है, सो I'll before explaining what it actually is, I'll just ask you one very basic simple question. ठीक है, so as I told, it has to be two-way street. So any of you can answer me this. Please, I'll really appreciate if some of you can speak. Do you think owning a beautiful house is an asset because you have a shelter? Obviously, shelter सबको चाहिए होता है. किसी दिन आपके घर से छत निकल जाएगी तो आप बेघर हो जाओगे, सड़क पे आ जाओगे. But is it an asset? A liability. It's a liability. Okay. Why do you think it's a liability? It's a liability because our money stuff is not giving us something in return. Okay. ठीक है. So As it would be something which would reap us something back. okay. And like owning a house is though it is giving us shelter, but Sure. it is not a asset. Okay, okay. So very well answered. It's very hard for me to recognize everyone from their voice. Okay, so whoever has spoken, you have spoken very beautifully. You are absolutely correct. But I just point out two things.
Beautiful house and shelter. These are two different things, guys. Shelter is like a plain roof you need under which you can eat, you can sleep properly, you can protect it from yourself in heat, summer, winter, rainy, anything. It gives you a shelter. But to beautify that house, then it becomes a very big liability, guys. Because एक घर को जब आप बड़ा सुंदर बना लेते हो ना, फिर आपको उसको मेंटेन करना पड़ता है, वो टाइम टू टाइम आपसे खर्चे की डिमांड करता है, ठीक है। कर्टन बहुत अच्छे लगा लोगे, थोड़े टाइम पे बोर हो जाओगे, नए कर्टन लगाने पड़ेंगे। अच्छे से अच्छा म्यूजिक सिस्टम लगाओगे घर में, सोफा, बेड, एवरीथिंग विल नीड मेंटेनेंस, ओके। आप फर्नीचर अच्छे क्वालिटी का लगाओगे, उसकी शाइन मेंटेन करने में आपको अलग खर्चा लगेगा। सो इफ़ यू इन्वेस्ट टू मच ऑन व्हाट यू से हाउस स्मार्ट डिवाइसेस, अब एलेक्सा आ रहा है, इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, दीज आर नथिंग but increasing your liability. So any one of you who has a thought that having a beautiful house is an asset, I will just like to break your myth and that you are wrong. Please don't be mad on me that I'm breaking your myth on the first second, but that is the case. If you just need a shelter, why you have to beautify it? It will take your regular cash flow with repairs and maintenance, and over time आपके पास में पैसे कम ही रहेंगे. Point number one. Next, after salary, now since most of us are youngsters, most of you barring few, I take it that हमारे पेरेंट्स हमारे लिए घर बना के तो हम लोग को एटलीस्ट देती है, हमारे सर पे शेल्टर तो ऑलरेडी है, छत तो है। सो व्हाट इज द फर्स्ट थॉट वी गेट इन आवर माइंड? सैलरी मिलेगी तो कार लूंगा, कार लूंगी, विल गो ऑन अ ट्रैवल विद आवर ओन मनी, वी कैन से प्राउडली दैट वी अर्नड इट। इज इट अगेन एन एसेट? कैन एनीवन से? I'll give maximum 30 seconds. If anyone speaks, it's good. Otherwise, I'll move forward. Please. Okay. So I'll take it that I have to take it from here. Okay, guys. कार बेसिकली एक नेसेसरी लाइबिलिटी टाइप की चीज़ है, ठीक है। कार आपको चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए। मैटर पता है क्या करता है कि आप उस कार के लिए पे कैसे कर रहे हो। लेट मी ब्रिंग अप अ पॉइंट टू यू। फॉर द नेक्स्ट 5 years यू विल एंड अप फाइनेंसिंग दैट कार। हम लोग कार लेते हैं, जितनी की भी कार लो अपने अपने इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से, आप पूरा अमाउंट कैश में नहीं देते हो, यू गिव सम डाउन पेमेंट और फिर आप एक कार खरीदते हो जिसको आप फाइनेंस कराते हो 3 साल 4 साल, जैसे जैसे आपको भी रेट पड़े। तो वो कार की वैल्यू ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो जाती है क्योंकि आप उसमें इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ब्याज दे रहे हो, ब्याज, ठीक है। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्याज। लाइक कि एक्चुअली कार की वैल्यू थी 4 रुपए, 4 लाख, उसमें कुछ ब्याज जुड़ता है और उसकी वैल्यू 5 साल बाद की हो जाती है 4,40,000। तो आप ऑलरेडी 5 साल आगे उसकी कॉस्ट बढ़ा के धीरे 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 दे रहे हो, जबकि उस 5 साल में उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो पहले तो 4,40,000 आप 4 साल में देते हो, 5 साल में देते हो, और फिर 1 साल रख के जब उस कार को बेचने जाते हो तो उसकी वैल्यू 2 लाख हो जाती है। तो वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है और उसके लिए आप ऑलरेडी ज़्यादा पैसे पे कर रहे हो। ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता। बट इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम लोग कार लेना छोड़ दें क्योंकि वो एसेट नहीं है। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। ऑल आई एम सेइंग, कार लो, बट उसको फाइनेंस अगर आप अपनी सैलरी से कर रहे हो ना, तब प्रॉब्लम है। अंडरस्टैंड हियर व्हाई। Guys, I'll appreciate if you keep yourself mute. At any moment you want to speak, just unmute yourself and then you can speak again, okay? Thank you so much. So, yeah. Now, most of us जो सैलरी पे काम करते हैं आज की डेट में, जिनके पास में बिजनेस है, अलग अलग मैटर ऑफ इंटरेस्ट होंगे, ठीक है। बट अगर आपकी सैलरी से आप इस कार का लोन पे कर रहे हो, इज योर जॉब परमानेंट? विद कोविड एंड द सिचुएशंस, लोगों की जॉब जा रही है, अच्छे अच्छे क्वालिफाइड लोगों की जॉब जा रही है। तो सडनली आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी जॉब चले गई और आपको इस कार का इंटरेस्ट तो फिर भी पे करना ही पड़ेगा। तो ये कार आपके ऊपर बर्डन बन जाएगी क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू रहेगा, ये कंपाउंडिंग रहेगा, ये बढ़ते रहेगा अगर आप नहीं पे करोगे। एंड देन आपके ऊपर पीनल एक्शन भी हो सकते हैं अगर आप उसको डिफॉल्ट करते हो तो। सो द कार बिकम्स योर लाइबिलिटी इफ यू पे इट फ्रॉम योर सैलरी। बट व्हाट इफ आई से आपने कोई एक एसेट क्रिएट कर लिया, लेट्स से आपने एक दूसरा घर रखा हुआ है जिसका कोई रेंट आता है, उसका रेंट आता है 7,000 पर मंथ, आपकी कार का ईएमआई पर मंथ जाता है 3,000।
अब आपको टेंशन नहीं होगी गाइस, क्योंकि घर से जो रेंट आ रहा है उसमें से कुछ पैसा कार की ईएमआई में चले जा रहा है. नाउ दैट दिस कार इज easy for you, burden feel नहीं होगा आपको. So the first lesson we are learning here today is how you keep your costs balanced. ठीक है, that is the whole crux here. Now सेंसिबल और एज द रिचेस्ट से कि रिच लोग एक्चुअली में अपने आप को मेंटेन कैसे करते हैं गाइस, बिकॉज वो लोग पैसा एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं. आप लोग अगर जो हैं जिनको समझ नहीं है फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग की, वो लोग महंगा फोन ले लेंगे, महंगी गाड़ी ले लेंगे, घर को डेकोरेट करने लगेंगे, ज्यादा शॉपिंग करेंगे. डिस्काउंट शॉपिंग करो, जो भी करो, बट अल्टीमेटली यू शॉप हेविली और उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाती है, उसको आप वापस रीसेल नहीं कर पाते हो. बट एसेट्स ये ओवर टाइम अपनी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं. दैट इज द होल लॉजिक दैट वी आर हियर टुडे, हाउ टू बिल्ड एसेट्स सो दैट ये आपको हेल्प करेंगे. एज आई सेड, एसेट्स दे डोंट डेप्रिशिएट. डेप्रिशिएट का मतलब होता है वैल्यू गिरना. गाइस, एट एनी पॉइंट इफ यू फील कोई भी टर्म कॉम्प्लिकेट हो रहा है, आई विल ब्रेक इट डाउन फॉर यू, यू जस्ट हैव टू नज मी. ओके, नाउ एसेट्स की वैल्यू गिरेगी नहीं, बल्कि ओवर टाइम एप्रिशिएट मतलब बढ़ेगी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एसेट्स कुड बी गोल्ड. मोस्ट ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड्स में काफी कॉमन होता है यार, गोल्ड में पैसा लगा लेते हैं. रियल एस्टेट भी हम लोग जानते हैं, शेयर्स एंड बॉन्ड्स, ये आज आप क्लियर हो जाएगा आपके लिए. बट नेवर अ करेंसी. मैंने करेंसी पे नहीं मार्क किया है, क्यों गाइस? करेंसी इज नथिंग बट जस्ट अ लीफलेट ऑफ पेपर. वो प्रिंट हो सकता है, कितना भी प्रिंट हो सकता है, इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है. आई मीन जो चीज़ इतने आसानी से कोई प्रिंट कर सकता है अपने दुकान के पीछे, या फिर गवर्नमेंट अपने बैंक में प्रिंट कर लेती है, तो उसकी वैल्यू इतनी क्यों रहेगी आज की डेट में? ठीक है, सो करेंसी नहीं, पर उसके अलावा गोल्ड, रियल एस्टेट, शेयर्स, बॉन्ड, इन सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हो. ये सारे के सारे एसेट हैं. ओवर टाइम ये आपको हेफ्टी रिटर्न्स देने की काबिलियत रखते हैं. नाउ एसेट्स दे गिव यू पैसिव इनकम. यू हैव टू फोकस ऑन दिस. व्हाई द पैसिव इनकम वर्ड? पैसिव इनकम इज समथिंग जिसके लिए आप काम नहीं करते हो. फोकस ऑन द नेक्स्ट लाइन हियर. मनी यू डोंट वर्क फॉर. आप में से कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे, कुछ लोग बिजनेस कर रहे होंगे. बिजनेस में आप सुबह से शाम तक बैठते हो, जॉब में आप 9 to 5 जॉब करते हो, यू वर्क हार्ड, मंथ के एंड में आपको सैलरी मिलती है. अगर आप वर्क नहीं करोगे तो सैलरी मिलेगी नहीं. सो यू आर एक्चुअली वर्किंग फॉर द मनी. बट पैसिव इनकम इज समथिंग वेयर मनी वर्क्स फॉर यू. आप उस पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हो, बट एंड ऑफ द टाइम वो पैसा आपको फिर भी मिलता है. दैट इज पैसिव इनकम. आई एम टेलिंग यू, जिस भी इंसान का पैसिव गेम स्ट्रांग होगा वो कभी बैंकरप्ट नहीं हो सकता है. ठीक है, ही इज द किंग ऑफ लाइफ स्टाइल, शी इज द किंग ऑफ लाइफ स्टाइल, उसको कभी दिक्कत नहीं होगी. यू हैव टू फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट. आपकी जॉब होगी बहुत हेफ्टी, आपकी अच्छी लाइफ स्टाइल होगी, आई रियली रिस्पेक्ट एंड ऑनर फॉर दैट, बट देर इज नो सिक्योरिटी इन दैट. इट कैन वैनिश इन अ पुफ. बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाती है एक एक दिन में, तो आपकी जॉब क्या चीज़ है फिर? किसी दिन आपके शॉप में अगर फायरवर्क से आग लग गया, कुछ हो गया, योर बिजनेस गेट्स डाउन. अगर उस एक शॉप के अलावा आपकी कोई इनकम नहीं थी, यू आर डन, आप सड़क पे आ जाएंगे फिर. सो पैसिव इनकम इज द एसेट हियर. नाउ नेक्स्ट थिंग, लाइबिलिटीज हाउएवर वर्क्स एज अ बर्डन फॉर यू. ठीक है, ईएमआई लोन, मॉर्टगेज, अब एजुकेशन लोन भी आ गया है. काफ़ी लोग एजुकेशन लेके अब्रॉड पढ़ने जाते हैं, फिर उतनी अच्छी उनको सैलरी वाली जॉब मिलती नहीं है, और वो लोग पूरे लाइफ अपनी एजुकेशन लोन में ट्रैप हो जाते हैं. नाउ टेक दिस फिगर हियर. पुअर, मिडिल क्लास एंड रिच. एसेट लाइबिलिटी आपको समझ में आ गया है. ठीक है, दिस यू नो. नाउ ऑब्जर्व दिस फ्लोज हियर. पुअर के पास में एक सैलरी आती है, वो उस सैलरी को सीधा एक्सपेंसेस में डालता है. उसको टैक्स, रेंट, अपना खाना, अपना पीना, अपने ट्रांसपोर्टेशन, कपड़े, नेसेसरी फूड, डाइटरी आइटम्स सब निकालने उसी में. वो बेचारा बचा ही नहीं पाता है कुछ. तो जिस दिन उसकी ये सैलरी कट हो गई, ये सारे के लिए कहाँ से लाएगा वो काम? इसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी उसको. वर्क ऑफ द मिडिल क्लास. मिडिल क्लास के पास भी सैलरी आती है, बट वो लोग पहले लाइबिलिटीज पे करते हैं. इसके पास में कार वार नहीं है, पर मिडिल क्लास के पास में कम पैसे होते हैं, लेकिन फिर भी उनके कार चाहिए, बाइक तो चाहिए ही यार, एक एक्टिवा रखनी है, एक आध अच्छा फ़ोन चाहिए, घर में टाटा स्काई टीवी होना चाहिए, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, दुनिया भर के अलग 100 खर्चे चाहिए. लगता है 300-300 रुपये ले रहे हैं, बट यू डोंट रियलाइज दे आर एक्चुअली चर्निंग मनी आउट ऑफ यू. सो आपकी सैलरी आती है, आप ये सब देते हो, एसेट वगैरह के लिए पे कर, यहाँ पर से पे करते हो अपने लाइबिलिटीज़ के लिए, घर का रेंट वगैरह. जो पैसा बचता है आप यहाँ पर आते हो, फिर आप अपने टैक्सेस, अपने मॉर्गेज, आपके कोई पर्सनल एक्सपेंसेस है वो देते हो. लुक एट द रिच.
दे ओनली हैव एसेट्स. रिच के पास में सैलरी वाला फैक्टर तो है ही नहीं यार. दे नेवर हैव सैलरी. वो लोग मंथ के एंड का वेट नहीं करते कभी भी. उनके एसेट्स होते हैं, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिविडेंड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ये उनको कंसिस्टेंटली 24 आवर 367 डेज उनको पैसे देते रहता है. एंड दैट्स हाउ देयर इनकम गेट्स डेवलप्ड. और वो लोग यहीं से अपनी चीज़ें खर्च करते हैं. उनके लिए एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज़ का तो कोई फैक्टर ही नहीं है. दे नेवर वरी अबाउट इट. बट दीज टू फैक्टर, ये लोग काफ़ी चिंता में रहते हैं. यही लोग टेंशन होते हैं. वेरी सॉरी टू से, सुसाइड यहाँ होता है, सुसाइड यहाँ भी होता है. यहाँ पे हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, सो टू से. ओके, सो आई विल नॉट गो इनटू ड्यू डिलिजेंस देयर. विल जस्ट मूव फॉरवर्ड. Now, the first thing that you're here for, share. What is a share? How it fluctuates. As I said, please don't start reading because we won't be here for long. Let's start and create a business. Okay, so I'll assume that four among you, ठीक है, आप लोग जितने लोग भी वेबिनार में आए हुए हैं, four among you gets together and wants to start a business. Okay, business could be anything. I'll assume that आप catering business में आ रहे हो. ठीक है, आप शादियों के पार्टियों का ऑर्डर लेते हो एंड देन यू सप्लाई थिंग्स. सो गाइस, जब बिजनेस में आप आते हो तो आपकी क्या चीज़ें होती हैं जो आपको चाहिए होता है? आपको आपका एक बेसिकली स्पेस चाहिए होगा, स्पेस स्लैश लैंड स्लैश वर्क हाउस, जहाँ से आप सब काम करोगे. दैन इक्विपमेंट्स, केटरिंग के लिए सारी चीज़ें, वॉट एवर यू कैन से, यूटेंसिल्स और सब चीज़ें. फिर वी कैन कम टू ट्रांसपोर्टेशन. आपको ये भी चाहिए होगा. गुड नो, ये सब चीज़ों से चाहिए ना, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कम्यूट करने के लिए. एंड सम रेगुलर फंड कैश फ्लो. तो आप चारों कुछ पैसे लगाते हैं अपने. सो दीज आर ऑल इन लैक्स. ओके, 10 lakhs, 2 lakhs and 4 lakhs. Okay, what's the total worth here? At any point, as I said, doubt होगा, please stop me. 16 की नेट वर्थ है. अब आप लोग चार लोग इस पार्टनर में बने हुए हो ना, आपको चारों को इक्वल हिस्सेदारी मिलनी चाहिए. इंडिविजुअल नेट वर्थ, ठीक है, ये क्या है? बिजनेस का नेट वर्थ है आपके टोटल चारों का. बट इंडिविजुअल नेट वर्थ कितनी होगी गाइस? दिस डिवाइडेड बाय 4. ये आपका इंडिविजुअल शेयर हो गया 4-4 लाख सबका. यानी कि आज बिजनेस को तोड़ दिया जाए तो तुरंत आपको 4 लाख रुपए तो मिल सकते हैं. ठीक है, दिस इज 2020, व्हाट इज सितंबर. आपने कुछ महीने काम किए, हम लोग चले जाते हैं स्ट्रेट टू 2021. ठीक है, एंड लेट्स गो टू मार्च. शादियों का सीज़न गया, आपने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया, आपने काफ़ी लोगों को सप्लाई किया. ठीक है, आपका प्रॉफिट हुआ कुछ. ठीक है, आई एम स्ट्रेट अवे जंपिंग ऑन प्रॉफिट. आपको कुछ ना कुछ तो पैसे मिलेंगे यार. तो लेट्स से आपको प्रॉफिट कितना मिल सकता है? आई विल टेक 2 lakhs. आपको 2 लाख रुपए का शुद्ध रूप से प्रॉफिट मिल गया. ये आपके पास में स्ट्रेट कैश आ गया है. ये तो स्पेस है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा. ये आज भी 10 lakhs है. इक्विपमेंट्स, कुछ ना कुछ इनमें खराबी आई होगी, कुछ खराब हो गए होंगे, कुछ रिपेयर करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस होंगे. इनकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी आज की डेट में. लेट्स से 1.8. अब ये जितने ट्रांसपोर्टेशंस हैं, इनमें डीजल का खर्चा लगा होगा, कुछ ना कुछ और भी इनमें रिपेयर वगैरह लगा होगा, तो इनकी वैल्यू भी गिर जाएगी ना. हमारे कार वाले एग्जाम्पल में कार की वैल्यू कम हो गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो सिर्फ मेंटेनेंस का खर्चा लगेगा थोड़ा मोड़ा, तो 3.8 इसको भी कर लेते हैं. अब ये 2 और ये आपके पास में नया आया है, ये 2 का फैक्टर, और ये सारे इधर से हैं. वापस से सम करते हैं अब. दिस सम इज फॉर व्हाट? नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस. ओके, इट्स 17.6. इंक्रीमेंट हुआ है यहां से. सो आपका नेट वर्थ क्या होगा? दिस अगेन डिवाइडेड बाय 4. 4 से 4.5 या फिर 4.4 बोल लो. व्हाट इज दिस? दिस इज योर शेयर. दिस इज योर शेयर. आपका इंडिविजुअल हिस्सा है ये. अगर बिजनेस बढ़ा तो आपका हिस्से की वैल्यू भी बढ़ गई. अगर यहां पे आप लॉस कर लेते, ठीक है, लेट्स से ये -2 हो जाता, आपकी शेयर की वैल्यू भी घट गई ऑटोमेटिकली. दिस इज द बेसिक क्रक्स. कोई शेयर क्या होता है? शेयर ये है जो आपने पैसे लगाए.
शेयर की वैल्यू क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कंपनी ने ग्रो किया या फिर कंपनी ने घाटा किया, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस। आई डोंट थिंक सो मैंने यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस लाया है। दिस इज द शेयर। आइडियली गाइस शेयर की वैल्यू ना इसी तरीके से फ्लक्चुएट होनी चाहिए, ठीक है। लेट्स क्रिएट अ शेयर, ये हो गया। नाउ शेयर इज अ कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो कि एक शेयर होल्डर को कंपनी में राइट देता है। जैसे कि आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था ना इस बिजनेस में, तो आपको इस कंपनी का राइट मिल गया था। इस कंपनी के सारे डिटेल्स आपको पता होते थे कि कहाँ बिजनेस कर रही है, क्या कर रही है। सिमिलरली इन द कैपिटल मार्केट जब आप किसी कंपनी के शेयर्स लेते हो ना, वो कंपनी आपको हर इंफॉर्मेशन देगी। दे विल फॉरवर्ड यू ऑन योर मेल प्रॉपर। मेल नहीं है, घर पे पोस्ट करेगी आपके, पर आपको बताएगी कि सर आने वाले टाइम पे एजीएम होने वाला है, मीटिंग है, आप आइए, इंटरनेट के थ्रू प्रॉक्सी वोट डालिए, क्या आपका मत है, क्या आपका डिसीजन है। दे विल आस्क यू, दे विल ऑनर यू एज देयर वन ऑफ ओन। नाउ एज आई सेड शेयर फ्लक्चुएट क्यों करता है? हमने अभी देखा रेवेन्यू मॉडल पे, यहाँ पे हमारी रेवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ रही थी तो शेयर की वैल्यू भी घट बढ़ रही थी। बट एक्चुअली में ना यूजुअल डेज पे ऐसा होता नहीं है। दिस इज द कैच हियर। I'll give you one more example. Now, we have it in most of our daily lives, okay? एक फार्मर है, कोई हॉर्टिकल्चर है, उसको टमाटर उगाना होता है। लेट्स से टमाटर वगैरह उगा के सब पेस्टिसाइड केमिसाइड वगैरह काट पीट के उसको टमाटर की वैल्यू एक्चुअली में टोमेटो की वैल्यू 30 रुपीज़ पर केजी पड़ती होगी। अब वो सब्जी मंडी में आया है, अपनी सब्जी बेच रहा है। आप भी गए उस सब्जी मंडी में, आपके जैसे ढेरों लोग होंगे वहाँ पे, 100 200। अब क्या होता है एक्चुअली में टमाटर की सेल वैल्यू उसका कुछ अगर प्रॉफिट वगैरह जोड़ेगा तो 22 रुपीज़ केजी होना चाहिए यार। और कितना प्रॉफिट लोगे आप? दैट इज द मैक्सिमम यू कैन गेट फेयर टर्म्स में। उगाए हो, प्रॉफिट भी ले लो आप, अच्छी बात है। बट वन अमंग यू, आप सब सब्जी मार्केट में एक साथ है, आप उस मंडी में, आप में से कोई एक चिल्लाने लगता है जोर जोर से कि मैं 40 रुपए किलो में लूंगी। I'll buy the same tomato जो 22 रुपीज़ केजी में चल रहा है, मैं उसको लूंगी 40 रुपीज़ केजी में, और जोर जोर से पब्लिक में चिल्लाने लगती है। आपको क्या लगता है वहाँ पे सब्जी मंडी वाले जो 22 रुपये टमाटर बेच रहे होंगे, वो लोग वापस से 22 रुपये में बेचेंगे अब? नहीं, वो सारे के सारे आपके पास आ जाएंगे और बोलेंगे मैडम आप मेरे से 40 रुपये में ले लीजिए टमाटर। वो तो खुशी खुशी दे देगा, और आप ले रहे हो। अब ऐसा तो नहीं है जब आप लोगे तो बाकियों को टमाटर की जरूरत ही नहीं है। इट्स अ बेसिक इंग्रेडिएंट इन योर हाउस, एवरीवन नीड्स इट एवरी डे इन ऑल योर 3 मील्स। सो बाकी लोग क्या करेंगे? दे विल ऑल्सो पे 40 रुपीज़। यार अब दाम है तो देना पड़ेगा ना, दे विल पे 40। अब जब सब्जी वाला देख लेगा ना कि ग्रीड आ गया इन दोनों के बीच में, इनको चाहिए ही टमाटर, इनकी नेसेसिटी नीड आ गई है, ये 40 बोल रही है, सामने वाली बोलेगी 42 44, ऐसे कर करके 22 रुपए की चीज को आपने 100 टाइम्स 100% से बढ़ा दिया ऑलरेडी। दिस हैपन्स इन कैपिटल मार्केट एज वेल। शेयर की फेयर वैल्यू भले ही 22 रुपए होगी, बट आप लोग का ग्रीड उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है। दैट इज द प्रॉब्लम गाइस। शेयर की वैल्यू ऑनेस्टली उतनी होती नहीं है, आपका ग्रीड उसे बढ़ाता है। अनदर टर्म, फियर, डर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप फिर उसी सब्जी मार्केट में जाते हो, ठीक है, बट इस बार आप खड़े रहते हो चुपचाप, और जो सब्जी वाला जो बेच रहा है ना, जो सेलर है, एक्चुअल रेट 22 रुपए चल रहा है, बट कोई एक सब्जी वाला सेलर चिल्ला के बोलने लगता है कि मैं 12 रुपए किलो बेचना चाहता हूँ। उसका अपना कोई पर्सनल रीजन होगा, जो भी होगा, बट वो तैयार होता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। आपको क्या लगता है बाकी लोग के 22 रुपए में बिकेंगे अब? नेवर। बिकॉज यू ऑल फिर विल रश कि आप 12 रुपए में बाय कर लो। अब बाकियों को भी तो अपना सामान बेचना है ना, टमाटर बेचना है, वो लोग 12 से कम चार्ज करेंगे। तो ओवरऑल आप लोग को टमाटर मिल जाएगा, बट टमाटर की वैल्यू बहुत गिर चुकी रहेगी। दिस इज ग्रीड एंड फियर। हम लोगों ने अभी एक रेवेन्यू मॉडल देखा कि ऑनेस्टली शेयर कितना बढ़ सकता था, बट देन वी जस्ट सॉ कि रेवेन्यू से कोई भी वैल्यू फर्क नहीं पड़ता, ग्रीड और फियर ज़्यादा रोल पे कर देता है। वो शेयर को बढ़ा भी सकता है, वो शेयर को गिरा भी सकता है। दैट इज द होल लॉजिक। सिर्फ इसी प्रिंसिपल पे कैपिटल मार्केट चलता है, ग्रीड एंड फियर, डिमांड एंड सप्लाई। एक का एक डिमांड बढ़ जाएगी अगर टमाटर की मार्केट में, तो टमाटर के प्राइस वैसे भी शॉर्ट अप कर जाएंगे। एक का एक अगर टमाटर की शॉर्टेज आ गई मार्केट में, सफिशिएंट डिमांड है, तो भी शॉर्ट कर जाएगा। रातों रात अगर बहुत सारे टमाटर आ गए एक सिटी में, तो कोई लेने वाला नहीं रहेगा, तो सस्ते में बेचना पड़ेगा ना।
तो क्या हुआ, सप्लाई बढ़ गई है टमाटर की अल्टीमेटली यहाँ पे, तो गिर जाएगा प्राइस यहाँ पे अगेन. दैट इज द बेसिक सप्लाई डिमांड ग्रीड फियर रेवेन्यू मॉडल. Just three terms. They work in tandem with each other completely. अब सब्जी मार्केट तो गाइस एक छोटा प्लेस था, आप एक छोटी सी सब्जी को डील कर रहे हो. जब आप कैपिटल मार्केट में आते हो ना, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाती है, वॉर वाली सिचुएशन भी हो जाती है, फिर आपका अपना पर्सनल ग्रीड एंड फियर, जनरल मार्केट का सेंटिमेंट, न्यूज़ क्या चल रहा है, दुनिया की कई सारी चीज़ें होती हैं जो शेयर्स को ना हिलाता है. एंड इसीलिए द कॉमन पब्लिक, अस, हम लोग डरते हैं इस मार्केट से. बट दैट इज़ वॉट आई एम हियर फॉर, कि डरने वाली बात नहीं है. बिकॉज इफ यू वंस अंडरस्टैंड इट काफ़ी अच्छे से, आई मीन दिस इज द बिगेस्ट एसेट यू कैन गेट. मूविंग ऑन, दिस ऑल आई कवर्ड. ओके, शेयर मार्केट. अब जैसे सब्जी मार्केट था ना, वैसी शेयर सब्जियां मिलती हैं, वैसी शेयर मार्केट में आपको 2000 टाइप्स के शेयर्स मिल जाएंगे. 2K, ठीक है, 2000 यहाँ पे शेयर्स आपको मिलते हैं. आप चुन लो आपको कौन सा पसंद है, किसकी डिमांड आगे जाके बढ़ सकती है, आप बाय कर सकते हो उसको ऑनेस्टली. बट अगर आपकी समझ नहीं है कि कौन सा सब्जी अच्छा है, किसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी होती है, तो आप शेयर्स को कैसे समझोगे फिर कि कौन सा शेयर अच्छा है, किसकी कंपनी ज़्यादा अच्छी है. अगर मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दूं, 3 साल पहले जियो लॉन्च हुआ था कंट्री में. आई थिंक 3.5 ईयर्स से ज़्यादा हो चुका है. आप लोग अगर उस टाइम भी समझ सकते थे कि जियो फ्री में सबको इंटरनेट दे रहा है, बात करवा रहा है, एंड इंडिया की पब्लिक, रईस आदमी भी बोलेगा फ्री की चीज़ मिल रही है मेरे को चाहिए, तो दे विल टेक इट. तो जियो ने 3 साल में पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया है. अगर आपका विजन था कि जियो इतना ईजिली काम कर लेगा, तो जियो का ही तो बिजनेस चल रहा है. अगर उसका बिजनेस बढ़ रहा है, हमने अभी देखा, तो शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी. तो आप रिलायंस के शेयर ले सकते थे. एंड सो टू स्पीक, रिलायंस का शेयर 150% ऊपर है 3 साल पहले से. इफ़ यू कैन इन्वेस्ट, दैट इज़ द सिंपल लॉजिक. मैंने आपको प्राइस भी डिक्लेयर नहीं किया है रिलायंस का, मैंने कुछ नहीं बताया है. मैंने आपसे सिर्फ एक विजन की डिमांड की थी. क्या आप सोच सकते हो? दैट इज़ द होल क्वेश्चन. ये सोच कैसे आएगी? पढ़ो, रीड अबाउट थिंग्स, रीड अबाउट बुक्स. आप सब्जियों के बारे में पढ़े ही थे ना कभी आपने अपने पेरेंट्स से सीखा, यार इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है. 6th 7th 8th में हमने पढ़ा कि इसमें विटामिन सी, विटामिन डी, किसमें प्रोटीन क्या होता है, हमने पढ़ा. वैसे शेयर्स को भी पढ़ सकते हो. सब चीज़ें फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट में. ऑल इट नीड्स योर टाइम एंड पेशेंस. मूविंग ऑन, दिस इज ऑल क्लियर वेरी मच. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर और भी है, सेबी. सेबी इज गाइस बेसिकली सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है, अब क्या होता है, सब्जी मार्केट में आपके साथ में कोई फ्रॉड कर सकता है, आपको जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन, कुछ बोलना पड़ेगा. कैपिटल मार्केट में अगर आपके साथ में कोई फ्रॉड हो गया ना, तो आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. सेबी इंटरवीन कर जाएगा आपके बिहाफ में, ऑटोमेटिकली सामने वाली पार्टी पे पेनाल्टी लगा देगा, पीनल एक्शन लगा देगा, और आपको आपके पैसे डिलीवर कर दिया जाएंगे. डोंट वरी, इतना आसानी से कैपिटल मार्केट में लॉस किसी को स्कैम से नहीं होता है. बहुत रेयर केसेस हैं, पास में हुआ, आई एग्री, हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, पारिक स्कैम हुआ था, बट दोज वर द डेज ऑफ पास्ट. आज अब नहीं हो रहे हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम से. वी आर इन द हेल्दी एनवायरनमेंट विद गॉड्स ग्रेस एंड गवर्नेंस. सेबी इज डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब. आई रियली रिस्पेक्ट दैट इंस्टीट्यूशन. ठीक है, दिस इज द शेयर मार्केट. इट्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. वर्ल्ड में कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो, सिर्फ इंटरनेट चाहिए. मैं अपने लैपटॉप से डेली कई सारे ट्रांजैक्शन करता हूँ, डजेंट मैटर मैं कहाँ भी बैठे रहूँ, बट आई कैन ऑपरेट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. ऑल आई नीड इज अ वैलिड इंटरनेट कनेक्शन, और कुछ नहीं चाहिए, लिजिट. सो आपका शॉप है, आपका बिजनेस, आपको सुबह उठ के जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, बट कैपिटल मार्केट में आज आप यहाँ हो, यहाँ से कर लो, कल दिल्ली चले जाओ, लंदन, न्यूयॉर्क, open your laptop from there, it will work the same way. It won't change even an inch. Okay, moving on. Now this is the important term, guys. I want you to respect, appreciate, or anything you can do to value this term. Return on investment. Basically आपको कितना फायदा होता है आपकी लागत पे. That is the thing. आप आज कितने पैसे लगा रहे हो और आपको कितने पैसे मिलेंगे at the end of the day. So your net profit or loss,
ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है ना, डिवाइडेड बाय योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपने लगाया है इनटू 100 बेसिकली उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए होता है. नाउ दिस इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला. वैसे तो हो सकता है सबको पता होगा, बट एज आई सेड विल डू इट फ्रॉम स्क्रैच. सो दिस इज द स्क्रैच. कॉमन सोर्स वी नो अबाउट इन्वेस्टिंग और मेकिंग मनी. फर्स्ट इज रियल एस्टेट. आई थिंक रियल एस्टेट के बारे में हम लोग सब लोग जानते होंगे बचपन से. जिनकी फैमिली अच्छी अच्छी है, बहुत लोग के फैमिली में फाइट्स हुए होंगे. फार्मर लड़ता है अपनी ज़मीन के लिए, कंपनी फाइट करती है ज़मीन के लिए. ओके, सो व्हाट इज़ द लॉजिक हियर? रियल एस्टेट में पैसा है क्योंकि लैंड की एक वैल्यू होती है. दैट्स वाई ऑल ऑफ अस आर सो हंग्री कि अच्छा ज़मीन होना चाहिए यार, कभी ज़रूरत पड़ जाएगा. ओके, सो नाउ सी दिस. बचपन से ही देखिए हम लोग प्रॉपर्टी फाइट्स, फैमिली फूड्स, इंपॉर्टेंट लैंड, कंस्ट्रक्ट, फार्म, कुछ भी बोलो रेंट करने के लिए. नाउ व्हाट आर द रिटर्न्स इन दिस रियल एस्टेट मार्केट? गाइस जिन्होंने 2000 में इन्वेस्ट किया होगा ना, अर्ली 2000, 2001, 2002, 1998, उन्होंने मैसिव रिटर्न्स लिए हैं मार्केट से. मैसिव, ठीक है, लिटरली 25-25 गुना रिटर्न मिल चुका है उन्हें पैसों का. बट डू यू थिंक आज पॉसिबल है? डू यू थिंक आप में से इंडिविजुअल कैपेसिटी, आपकी आज जो जॉब है, जो भी आपकी सैलरी होगी, इफ़ आई से कि 20 लाख रुपए का प्रॉपर्टी है, खरीदना है, कैन यू बाय इट एट इंस्टेंट राइट नाउ? जब आपने डिसीजन ले लिया, अभी तुरंत मैं बोल रहा हूँ ले लो. आई डोंट थिंक सो. यू कैन नॉट गिव 20 lakhs आउट ऑफ योर पॉकेट एट दिस मोमेंट. आपकी सैलरी उतनी है ही नहीं, आपकी सेविंग उतनी है ही नहीं. आपने आज तो अपनी जॉब शुरू की है, कहाँ से लाओगे? फैमिली वेल्थ है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग गाइस, बट दिस इज नॉट द केस हियर. वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट यू. दिस इज द रियल एस्टेट. पहले था सक्सेस, आज मुश्किल में है. यू गाइस कैन नॉट एंटर द रियल एस्टेट मार्केट. आपके पास में वो 20 lakhs वाला बैरियर है ही नहीं, तो क्या करोगे फिर? इफ़ यू हैव 2000, दैट कैन बी मैनेज आउट ऑफ योर ओन पॉकेट. आपकी सैलरी होगी 20K, 10K, एनीथिंग, बट उसमें से 2000 आप निकाल सकते हो अपनी जेब से. आई थिंक उतने की तो हम लोग पार्टी कर देते हैं कभी कभी जाकर. ऑनेस्ट, you can give me 2000, I can invest in capital market, we can have return on investment on that same 2000. It works that way only. Moving on, we know about real estate market. मैं यहाँ पे ये डिस्कस करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ कंपेयर करना चाह रहा था कि रियल एस्टेट में आज आप एंटर नहीं कर सकते हो, बट कैपिटल मार्केट में आज आप एंटर कर सकते हो. ना सी दिस, हमारा राजू है ये. विप्रो 10,000 1980, 7.5 करोड़ नाउ आज की डेट में इसकी वैल्यू है. रिलायंस 3.5 करोड़. अदानी ग्रीन 2019 में 10,000, 2020 में 1,70,000 है ये. लॉरस लैब्स अभी जून में 2020 10,000, नाउ वैल्यूड एट 30,000. यानी कि आपने 10,000 रुपये लॉरस लैब्स में अगर इन्वेस्ट किए होते, जस्ट लाइक बाइंग अ लैंड, थिंक ऑफ इट एज अ पीस ऑफ लैंड, जून में आपकी वैल्यू 30,000 होती है अभी. आरती ड्रग्स 10,000 इन मार्च, इट्स 40,000 नाउ. सो एज आई सेड, रियल एस्टेट का रिटर्न अभी तक आपने देख लिया है, आपने कैपिटल मार्केट का रिटर्न अभी देखा ही नहीं है. इट्स माइंड बॉगलिंग, ठीक है. वो आपको एक मोमेंट ऑफ ऑ में ले जाएगा कि यार इतने पैसे बनते हैं इसमें से, लिजिट. आई से यस, आपको नॉलेज होना चाहिए. बस आपको लॉरस लैब्स का बिजनेस समझना पड़ेगा. लोगों ने 1980 में विप्रो और रिलायंस के बिजनेस पोटेंशियल को देख लिया था. दे हैड अ ट्रस्ट ऑन अजीम प्रेमजी, द ओनर, ठीक है. दे हैड अ ट्रस्ट ऑन धीरू भाई अंबानी. सेम वे आज की डेट में अदानी ग्रीन, गौतम अदानी पे लोग ट्रस्ट करते हैं. दैट इज अ नाइस मैन, ही वोंट डू फ्रॉड. अच्छा आदमी, उसके दिनचर्या से दिखता है यार. ऑनेस्टली विजय माल्या के लाइफस्टाइल से मेरे को नहीं दिखता था कि ही इज अ नाइस मैन, ठीक है. सो हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ यू टॉक टू अदर्स, दिस थिंग्स मैटर. ओके, इफ यू कैन नॉट गिव रिस्पेक्ट टू योर एम्प्लॉयज, आपकी कंपनी अच्छी नहीं चलेगी. सेम थिंग हैपन्स विथ योर शॉप. आप अपने वर्कर्स को रिस्पेक्ट देना बंद कर दो, हो सकता है वो लोग थोड़े टाइम में जॉब छोड़ देंगे. फिर कहाँ से ढूंढोगे? इतने आसानी से ट्रस्टफुल वर्कर्स मिलेंगे नहीं. स्मॉल स्केल में वही चीज़ है, लार्ज स्केल में वही चीज़ है, बस आपके समझने की क्षमता बढ़ानी होगी मुझे. दैट इज़ ऑल. ओके, सो दिस इज जस्ट टू गिव यू अ रफ आइडिया कि रियल एस्टेट को कोई रिटर्न था ही नहीं. ये है रियल मनी और ये पॉसिबल है, ठीक है. इस टाइम पे मैं बॉर्न नहीं हुआ था तो मैं ये कर नहीं पाया. इस टाइम पे मैं बॉर्न हुआ था और मैंने ये किया है. एंड अगर मैं कर सकता हूँ तो आई थिंक
आप में से कोई भी कर सकता है, बिकॉज वी आर ऑल सेम, ऐसा कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। सैलरी वाली जॉब, ये मुझे काफ़ी सुनने में मिलता है कि यार मेरी रेगुलर जॉब है, हाउ कैन आई अर्न फ्रॉम द मार्केट देन। वेल गाइज, मेरे पास में दो रास्ते हैं आपको देने के लिए। एक होता है SIP इन्वेस्टिंग, मोस्ट ऑफ लोग सुनोगे म्यूचुअल फंड नहीं है, धीरे धीरे पैसा देते रहो वगैरह वगैरह। और एक मेरा मॉडल है, दिस इज माई फेवरेट, ब्रेकफास्ट लंच ट्रेड। आई एक्सप्लेन दिस लेटर, ठीक है। ये काफ़ी स्वीट सा मॉडल है, ठीक है, एस्ट्रिक मार्क, ये काफ़ी सुंदर है। SIP इन्वेस्टिंग, I think most of you लोग सुने होंगे, but I'll explain it this also. So we'll compare this two at a later point in this webinar only. I insist you to do this. ये SIP investing या ये breakfast lunch trade, I will insist you to do this because inflation, मेरे भाई इन्फ्लेशन बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अगर आप लोग नहीं समझते इन्फ्लेशन क्या है, तो महंगाई को इन्फ्लेशन बोलते हैं एक्चुअली में, ठीक है। आप कोई चीज़ आज ले रहे हो, उसकी क्या वैल्यू थी, सेम चीज़ 3 साल पहले आप ले रहे थे, उसकी क्या वैल्यू थी। ओवर द टाइम वो चीज़ महंगी हो गई है। आपकी सैलरी नहीं बढ़ी है, पर आपको पैसे ज़्यादा देना पड़ रहे हैं, महंगे हो गए आपके लिए सामान, फिर दिक्कत होगा आपको उसको ख़रीदने में। आपकी जेब से ज़्यादा पैसे जाएंगे, आपके बैंक में ज़्यादा पैसे कम बचेंगे। आप पहले ट्रिप ले लेते थे साल में, अब वो ट्रिप नहीं ले सकते हो। आप थोड़े एक्स्ट्रा शॉपिंग कर सकते थे, थोड़ी लेजर और होटल में रुक सकते थे, आप नहीं रुक पाओगे। ओवर टाइम इन्फ्लेशन बढ़ेगा। हर व्यक्ति के लिए इन्फ्लेशन की डेफिनेशन अलग हो सकती है। एक पुअर क्लास के लिए, एक लेबर के लिए टमाटर का प्राइस बढ़ना ही बहुत बड़ा खतरा है उसके लिए, उसका खाना रुक जाता है। आपके लिए हो सकता है कोई और इन्फ्लेशन हो, आई विल नॉट पिक पॉइंट हियर, बट कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको लगे कि आज की डेट में महंगी और वो कल और महंगी हो जाएगी। दिस इज इन्फ्लेशन एंड दैट इज़ वाई अगर आपकी सैलरी उस स्पीड से नहीं बढ़ रही जिस स्पीड से इन्फ्लेशन बढ़ रही है ना, ओवर टाइम यू विल गेट पुअर। ऑनेस्ट, rough, crude, rude, whatever you say, you will get poor. आपकी नेट वर्थ डिक्लाइन हो जाएगी। माइंड इट। ऑलवेज रिमेंबर, इन जॉब यू वर्क फॉर द मनी, वी हैव नोन दिस, ठीक है, सैलरी मिलती है, बट इन कैपिटल मार्केट द मनी वर्क्स फॉर यू। आप इन्वेस्ट करते हो उस पैसे को बस एक बार, और आप उसको उसका काम करने देते हो, वो ओवर टाइम बढ़ता है और फिर आप उसकी वैल्यू को रियलाइज करते हो। तो दैट इज मनी वर्किंग फॉर यू ना। आप थोड़ी ना डेली बैठ के उसकी वैल्यू को ऐड करते रहते हो, आप तो एक बार लगा के छोड़ देते हो उसको, और आप अपना दुनिया का दूसरा काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। आई कैन से यू आर प्लेइंग स्पोर्ट्स, यू आर ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, बट मनी गेट्स इंक्रीज ओवर टाइम, और आपको एक इंक्रीमेंटल वैल्यू मिलती है थोड़े टाइम के बाद में। मूविंग ऑन, ऑल आई सेड इज अर्न while you sleep, travel and rest. This is my motto in life, guys. Honestly, over the time मैंने अपने आप को ऐसा स्किल कर लिया कि मेरे को अब जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। If I have done it, I can train anyone, I believe so. All I need is a commitment कि हाँ मैं तैयार हूँ, ठीक है। I'll give you time. All I demand is your time and your attention. I can do it. I can turn you around. I have trust. You can gain trust and win over time. आज आप यहाँ पर हो क्योंकि शायद आपने कुछ देखा होगा, ठीक है, ओवर द टाइम, मेरे थॉट्स, मेरे प्रोसेस, सो यू आर हियर टुडे। मूविंग ऑन, सो सैलरी वाली जॉब में ये पॉइंट अभी बचा हुआ है, ठीक है, वी विल डिस्कस दिस। बट ये ज़रूरी क्यों है? इसके कारण इन्फ्लेशन, करंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या आप लोगों को पता है? 6.2%। हर साल चीज़ें 6.5% से महंगी होने लगेगी अभी के टाइम पे। विद कोविड सिचुएशन अगर ये कंटिन्यू रहेगा ना, ये इन्फ्लेशन बढ़ते रहेगा। नाउ इफ यू फिगर इट आउट, आपकी नेटवर्थ हर साल इतने से डिक्लाइन होगी फिर, क्योंकि आपकी सैलरी तो नहीं बढ़ रही है बट महंगाई बढ़ रही है, तो आपकी नेटवर्थ तो डिक्लाइन होगी ना। सी मोर, इन्फ्लेशन इज अ किलर, साइलेंट किलर। यू सी दिस, ये कॉफ़ी है, ठीक है, 1970 में 0.25 का था, 2020 में उतना ही कॉफ़ी 1.75 का हो गया है। यू सी द जंप, ये देखो ये सिक्के बढ़ रहे हैं। व्हाट इफ आपके पास में आपकी सैलरी ये सिक्के बढ़ते नहीं, तो आप कॉफ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते एक बेसिक सी चीज़ को। एंड ऑनेस्टली सम पुअर पीपल दे कांट अफोर्ड अ कॉफ़ी। सो उनके लिए है, आपके लिए आज नहीं है, पर आपके लिए कोई और चीज़ होगी। इट विल कम टू यू, इट विल हॉन्ट योर बैक, प्लीज़ यू विल रिमेंबर मी दैन। आई वोंट एम्फसाइज ऑन दिस मच, बट महंगाई का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है, और क्यों ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए मैं आपको बस इंस्पायर करना चाहता हूँ। अदर एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब सिर्फ शेयर मार्केट थोड़ी ना है, ये होते हैं KVS सर्टिफिकेट्स गाइज, किसान विकास पत्र। बेसिकली स्कीम है गवर्नमेंट की, आप उसमें पैसे दे दो, गवर्नमेंट आपके पैसे को 10 साल के लिए ब्लॉक कर देगी, और आपको एनुअली आपके पैसे पे
6 से 7% का रिटर्न देते रहेगी, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट, बैंक्स में हम लोग पैसे रखते हैं ना, तो ये 4 से 6% मिलता है। अगेन कितना टाइम लेती है बैंक? 1 साल लेती है इस पैसे के लिए, और 1 साल बाद आपको 6% देती है मुश्किल से। अभी आरबीआई का एक और नया आपने सुना होगा, गोल्ड बॉन्ड स्कीम, द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, वो 8% प्रॉमिस कर सकता है आपको, ठीक है। टैक्स वैक्स सब कटेगा, 7 साल के लिए आपसे पैसे ले रहा है। तो डू यू सी हियर, हर जगह आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो कुछ टाइम लग रहा है उस पैसे को आपको रिटर्न देने में। सिमिलर इज द केस ऑफ कैपिटल मार्केट, यहां पे भी आप पैसे इन्वेस्ट करोगे, कुछ टाइम होगा जो आप दोगे, और फिर वो आपको कुछ एक रिटर्न देगा। अब ये रिटर्न कितना हो सकता है, पॉइंट टू बी क्वेश्चन। कैपिटल मार्केट का रिटर्न काफी हैवी होता है, बट एक और चीज अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे तो वी जस्ट स्टडीड द इन्फ्लेशन, राइट। हमने अभी देखा कितना इन्फ्लेशन, 6.2। अब अगर हर साल महंगाई 6.2 से बढ़ रही है और आपको 6% ही मिलेगा, तो आपकी रिचनेस कहाँ आई है? आपको तो कोई पैसे मिल ही नहीं रहे हैं ना। अल्टीमेटली योर नेटवर्थ इज सेम, बल्कि कम ही होगा। टैक्स वैक्स देना पड़ेगा, कुछ और खर्चे हो गए साल में, फैमिली एक्सपैंड हो गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, देयर कैन बी मैनी, आई वोंट पिक आउट, ओके। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस गाइस कि जो नॉर्मल एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये कन्वेंशनल मीन्स है। जो लोग शांत सुंदर रहना चाहते हैं वो लोग यहाँ अपने पैसे रखते हैं, आप भी रख सकते हैं। मैं आपको बैरियर नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब खराब है, मेरा काम है सिर्फ आपके लिए कंपेयर करके देना कि ऑनेस्टली ये लोग इतना पैसा दे रहे हैं जबकि महंगाई इतने से बढ़ जा रही है। अब सोचो कैसे सरवाइव करोगे। रेगुलर इनकम वर्सेस वेल्थ क्रिएशन, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। एक होता है कैपिटल मार्केट में आपको रेगुलर इनकम चाहिए, मुझे हर महीने कुछ पैसे चाहिए यार कैपिटल मार्केट से। एक होता है वेल्थ क्रिएशन, मेरे को ओवर टाइम बस अच्छा खासा पैसे मिल जाए कैपिटल मार्केट से, मैं उसमें भी खुश हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दोनों ऑप्शंस फुल्ली एग्जीक्यूटेबल है। आपको जितना एनुअल मतलब रेगुलर इनकम चाहिए कैपिटल मार्केट से मिल सकता है, यू नेम इट, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 1 CR, 2 CR, पॉसिबल है, हर महीने पॉसिबल है। वेल्थ क्रिएशन, मुझे 10 करोड़ चाहिए, पॉसिबल है। बट 10 करोड़ चाहिए मतलब 10 करोड़ आपको प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पढ़े थे ना, तो आपको कुछ ना कुछ पैसा तो लगाना पड़ेगा 10 करोड़ कमाने के लिए। हर महीने 2 लाख कमाना है तो कुछ ना कुछ पैसे तो लगाने पड़ेंगे ना। तो गाइस, कैपिटल मार्केट में एक बैरियर ऑफ रिटर्न्स होते हैं, सेफ रिटर्न जिसको बोलते हैं, बिना गैम्बलिंग किए, ठीक है, बिना गैम्बलिंग किए। तो आपको उस चीज को समझना पड़ेगा। मूविंग ऑन, सी हियर, नाउ वी आर इन द एंड गेम्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई नीड टू आस्क यू, व्हाट्स योर मोटिव हियर टुडे? प्लीज एनी वन ऑफ यू कैन आंसर मी कि आप यहाँ पे आज क्यों हो। आई वांट टू हियर फ्रॉम योर साइड, एनीवन। Come on, with confidence. Come on, anyone. Please, I insist. Okay, someone else. To gain an in-depth knowledge. Okay, that's very, what do you say, bookish, aspiring, inspiring. Primary intention, समझने के लिए आए हो कैपिटल मार्केट क्या है, कैसे लोग पैसा बनाते हैं इससे, ठीक है। सी दिस, मैंने बोला दो, रेगुलर इनकम क्या होता है, तुरंत तुरंत कैश मिलता रहे। वेल्थ क्रिएशन क्या होता है, ओवर टाइम जो पैसा लगाए हो वही बढ़ जाए, ठीक है। दोनों पॉसिबल है। आई सेड, डू यू विश टू अर्न रेगुलर मनी? दिस रेगुलर मनी कुड बी एवरी मिनट, डेली, वीकली, मंथली, इट्स पॉसिबल। आई ट्रेन। रेगुलर इनकम में क्या होता है, ऑन मोस्ट ऑफ द नाइट्स कैपिटल मार्केट में मेरे कुछ अलग अपने तरीके हैं, अपने प्रोप्राइटरी मेथड्स है जो मैं अप्लाई करता हूँ, उससे हर रात मंडे टू फ्राइडे आप 1 से 2% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो एवरी नाइट, ठीक है। आप सोओगे, आप कुछ भी करो, बट इतना पैसा आपको अगले मॉर्निंग मिल सकता है गाइस, दिस इज पॉसिबल। नाउ यू माइट नॉट अप्रिशिएट दिस, 1% 2% क्या है यार, बट अभी 6% अगर इन्फ्लेशन साल का है, आप एक रात में 1% कमा रहे हो, तो आपने इन्फ्लेशन को हर दिन बीट किया है। फिर तो यू आर ऑलरेडी गेटिंग रिचर डे बाय डे, एंड इन्फ्लेशन विल मेक यू पुअर इन 365 डेज। आप उससे 1 साल आगे चल रहे हो, डोंट वरी। अब इन्फ्लेशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, स्टे विथ मी, ठीक है। ब्रेकफास्ट एंड लंच ट्रेड, दिस इज माई मॉडल, ठीक है, माई क्रिएशन, आई कॉल इट। कैपिटल मार्केट में मैं आपको रेगुलर में ऐसी चीज़ें सिखा सकता हूँ, दिस इज माई पोटेंशियल।
आप 3 बजे लंच करते समय कोई शेयर्स निकालोगे, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे निकालना है। अगले दिन सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट के टाइम पे मार्केट ओपन होता है, आप बेचोगे, 1% प्रॉफिट, यू आर डन। आपको मार्केट में बैठने की जरूरत नहीं है। फिर आप लंच में आते हो 2:30 बजे, 2:30, यू अगेन लुक फॉर द शेयर्स, आई टेल यू हाउ, यू इन्वेस्ट। अगले दिन अगेन 9:15 ब्रेकफास्ट के टाइम पे यू सेल। ब्रेकफास्ट एंड लंच मॉडल आई कॉल इट, it's workable, it's trustable. Several of my students are implementing it. I have been implementing it honestly. It's hassle free, tension free, and I can honestly sleep very restfully. मेरे को जॉब में नहीं जाना होता है सुबह, मेरे को सुबह 9 बजे अपना लैपटॉप खोलना होता है बस प्रॉफिट बुक करने के लिए, या फिर ऑन सम डेज ऑब्वियसली लॉसेस भी बुक करने पड़ते हैं। आई विल नॉट ब्रैग कि हमेशा प्रॉफिट होगा, लॉसेस भी होगा, बट इट विल बी मैनेजेबल बिकॉज आई विल टीच यू हाउ टू मेक इट मैनेजेबल एंड स्टे नेट टू नेट प्रॉफिटेबल. दैट इज द होल गेम हियर. See this more. Do you wish to have a wealth creation? Wealth creation. यहाँ पे आपको कोई रेगुलर प्रॉफिट नहीं मिलेगा गाइस, रेगुलर कैश फ्लो नहीं मिलेगा, बट यू हैव टू कमिट टू अ टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर टू 20 ईयर पीरियड. रिलायंस 5 साल बाद आपको पैसे दे रहा है ना, जियो के पूरे चलने के बाद 150% रिटर्न मिल रहा है. 1 लाख लगाते 2.5 लाख आज मिल जाता आपको, बट पेशेंस चाहिए था 5 साल का. आना मुश्किल है थोड़ा सा, बट लोगों ने किया है. आप भी कर सकते हो अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन का नॉलेज होता है तो. दैट इज अनदर केस हियर, लुक फॉर इट मोर. 5 साल में आपको एक मैजिक दिखेगा, आई बेट ऑन इट, ठीक है. नॉट टू से आई कैन बेट माई लाइफ ऑन इट, बट आई कैन बेट हेवी थिंग्स ऑन दिस कि 5 साल में आपको एक मैजिक दिख सकता है अगर आपकी इन्वेस्टमेंट करने का तरीका सही है तो. और 20 साल में ना आपको इतना प्रॉफिट मिल सकता है दैट यू कैन शेक एनीवन टू डेथ. मतलब लोग बाफल्ड हो जाएंगे कि आपके पास में इतने पैसे कहाँ से आ गए. इट हैपन्स, ठीक है. People have made so much money in the capital market that they don't know where to put it. And for people, some of us, sufficient पैसे नहीं है कि अगर ये चीज़ खरीदनी है तो कहाँ से लाऊं मैं. See the disparity here, कितना डिफरेंस है. उनका फाइनेंशियल विजडम आगे था हमसे तो उन्होंने कमा लिया यार. अगर आज हमारा फाइनेंशियल विजडम आ जा रहा है तो उसमें खराबी क्या है. We can start today also. This is not the end. Wealth creation, we'll dwell on this more now. SIP in mutual fund versus self SIP, ये दो तरीके हैं, ठीक है. SIP का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. नाउ वेरी टर्म, हाइपर टर्म. हर मंथ आप कुछ पैसे दे सकते हो जो आपको ज़्यादा पेन नहीं करता है. अगर आप बोलते हो यार मेरे पास में हर मंथ कुल मिला के 2,000 या 1,000 या 500 रुपये बचते हो, मैं उसी को दे सकता हूँ, तो ठीक है, इट्स फाइन. आपका रिटर्न उसी पे मिलेगा आपको. हर मंथ आपके पास में 10,000 बचते हैं एंड ऑफ द डे में, मंथ में, यू सेविंग्स एंड एवरीथिंग एक्सपेंसेस काट के, दैट इज द रिटर्न. आप उसको इन्वेस्ट करोगे. फिर उसमें कोई चीज़ नहीं है कि कम पैसे या ज़्यादा पैसे हैं. आप इन्वेस्ट कर रहे हो लंबे टाइम के लिए और आप कंटिन्यूसली हर मंथ उस पैसे को देते रहोगे. अब इसमें दो क्राइटेरिया है गाइस. एक होता है SIP जो हर महीने पैसे देना, म्यूचुअल फंड में देते हो आप. वहाँ पे आप कोई शेयर्स का चॉइस नहीं कर रहे हो गाइस. आप बस म्यूचुअल फंड को पैसे दे रहे हो यार कि मेरे को पता नहीं है, आप लगा लो, थोड़े टाइम पे मेरे को रिटर्न दे देना. बट जब आप सेल्फ SIP करते हो उसमें शेयर्स की चॉइस आपकी होती है. आप डिसाइड करते हो विजन के साथ में कि कौन सा शेयर आने वाले सालों में बढ़ सकता है, तो मैं इसको आज ही धीरे 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 लेना स्टार्ट कर लेती हूँ. आई विल गेट सम मनी इन दैम. मे बी आप आज स्टार्ट कर रहे हो, 10 years डाउन द लाइन आपके कोई अपने एक्सपेंस होंगे, आपकी अपनी फैमिली होगी, कुछ भी हो सकता है. आई विल नॉट ड्वेल इन टू दैट, दैट्स नॉट नन ऑफ माई बिजनेस. बट ऑल आई वॉन्ट कि 10 साल या 20 साल बाद आपके पास में उतने पैसे होने चाहिए. यू कैन टेल मी आपको कितने पैसे चाहिए, मैं बता दूंगा आपको आज कितने पैसे लगाने होंगे. कंटिन्यूसली कितने पैसे लगाने होंगे मैं ये भी बता दूंगा. कहाँ लगाने होंगे मैं ये भी बता सकता हूँ. आप भी सीख सकते हो कि कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं. इन्वेस्टिंग, ट्रेनिंग, ट्रेडिंग, ट्रेनिंग सब होती है, ठीक है. मूविंग ऑन, चेक दिस आउट. म्यूचुअल फंड SIP एंड सेल्फ SIP, दिस इज व्हाट वी जस्ट डिस्कस ना. आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड एजेंसी को पैसे देते हो, यहाँ पे यू विल हैव द चॉइस ऑफ शेयर्स, ठीक है. यू कैन लर्न हाउ टू सिलेक्ट शेयर, दैट इज माई जॉब टू गाइड यू कि कैसे उस शेयर्स को चूज करना है. एवरेज रिटर्न यहाँ पे एनुअली आपको 8 से 10% देता है म्यूचुअल फंड. कोई भी डेटा उठा के देख लो, ठीक है. यू कैन टोटली मूट मी ऑन दिस. एवरेज रिटर्न एनुअली आप जब खुद शेयर चूज करते हो और अच्छे चूज कर लिए, ये होता है 30%. या इसका 3 है, 3x. आप अपने लिए कुछ तो कर रहे हो. अब म्यूचुअल फंड वाले अपनी पूरी एजेंसी दुनिया भर के सब चीज़ें इधर उधर कर करके आपको पैसे देते हैं लास्ट में.
आपकी अपनी एसआईपी में और कोई खर्चा नहीं है दुनिया का. इट्स योर ऑनेस्ट एफर्ट. डू दैट. इट्स पॉसिबल, इट्स सक्सेसफुल एंड इट कैन बी डन बाय यू. नो मैटर आप 500 रुपये लगाते हो या आप 5,000 लगाते हो या आप 50,000 लगाते हो, रिटर्न उस पर मिलेगा 30% का. आई कैन बेट ऑन यू दैट. Ways to learn from capital market. We are finally moving to the end. Trading versus investing. Trading क्या होती है? ट्रेडिंग नहीं हुआ, ठीक है. ट्रेड करना मतलब क्या होता है? लेना देना. कुछ चीज़ आप खरीद लिए कल बेच देते हो, कुछ चीज़ आज बेच दिए कल खरीद लेते हो. आई मीन इन रियल लाइफ पीपल, सम पे हार्श पीपल, इमोशंस को भी ट्रेड कर देते हैं, भावनाओं को, ठीक है. लेट्स नॉट गेट दैट सेंटिमेंटल. बट एनीथिंग, आप आज कुछ लेते हो, कोई चीज़ सेकंड हैंड वैल्यू होती है तो उसकी वैल्यू अलग होगी, कोई चीज़ फर्स्ट हैंड होती है तो उसकी वैल्यू अलग होगी, बट अल्टीमेटली ट्रेड तो हो रहा है ना. आप आज आपने गोल्ड लिया, कल उसकी वैल्यू बढ़ गई, आप ज़्यादा पैसे में बेच रहे हो, तो आपने ट्रेड कर दिया है गोल्ड को, कम में लेकर ज़्यादा में बेच दिया है. आज गोल्ड की वैल्यू काफ़ी बढ़ चुकी है तो आपने गोल्ड को बेच दिया है, कल गोल्ड की वैल्यू कम हो जाएगी तो आप वापस खरीद लेते हो, तो भी बीच का पैसा आपने बचा लिया ना. आपका वो लॉस तो नहीं हुआ जब गोल्ड की वैल्यू गिरी. तो दिस इज प्रिसाइसली ट्रेडिंग. शेयर्स में भी होता है. अब शेयर्स में आपको थोड़ा सा नॉलेजेबल होना पड़ेगा कि कौन सा शेयर बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा. सारे के हैक्स होते हैं गाइस. ऑनेस्टली इट्स ऑल अबाउट लर्निंग. देयर इज नथिंग दैट कैन नॉट बी लर्नड एंड परसीव्ड एंड प्रैक्टिस्ड. You just have to have the, what do you say, conviction, or what do you say, discipline, commitment, anything you say. Okay. Trading versus investment. I'll deliberate on this now. See this. We'll discuss time frame, expected returns, knowledge, मेरा काम क्या होगा, and conclusion. Okay. Time frame. Investing में, as I said, 3 साल के पहले तो भूल जाओ कि कोई रिटर्न मिलना चाहिए. अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो 3 साल के पहले रिटर्न की डिमांड नहीं करोगे. लंबा समय चाहिए होता है यार, पैसे भी थोड़े लगा रहे हो. 3 साल में तो कुछ एक कॉर्पस अमाउंट बढ़ेगा आपका, तब तो जाके रिटर्न मिलेगा. दूसरे एंड में लाइफ टाइम है, अपने ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर्स को भी गिफ्ट कर सकते हो. ट्रेडिंग ऑन दी अदर हैंड 1 day to 1 month चलता है. बहुत शॉर्ट टर्म में यहाँ पर रिटर्न्स मिलते हैं आपको, प्रॉफिट्स. एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 50% एक्सपेक्ट कर सकते हो. ऑनेस्टली ऑन दी अदर हैंड 2000% का रिटर्न. आई मीन नेटफ्लिक्स ने दिया है, हमारे यहाँ विप्रो ने दिया है, एमआरएफ ने दिया है, आयशर मोटर्स ने दिया. आई कैन नेम मैनी, बट मैं आपके लिए एक वैल्यू लाना चाह रहा हूँ. मेरा पर्पस यही है. 550% मिनिमम टू बियॉन्ड इमेजिनेशन 2000. यहाँ पर 2 से 20%, 2% दिन का, 20% महीने का. उसके पीछे वैल्यू फ्लक्चुएट होते रहेगी. मैनेज करना सीखना होगा अपने को, ठीक है. नॉलेज. आप जब केटरिंग वाले बिजनेस में थे, जो हमने स्टार्टिंग में बिजनेस क्रिएट किया, आपको नॉलेज था ना केटरिंग का. आपको पता था शहर में डिमांड है, काफ़ी शादियां होती हैं, ज़्यादा केटरिंग वाले हैं नहीं, मेरा बिजनेस चल जाएगा, मेरी नेटवर्थ बढ़ जाएगी. सिमिलर हैपन्स इन यहाँ पे भी. आप कोई कंपनी देखते हो, उसकी शेयर वैल्यू पे मत जाओ. एज आई सेड, वो डिमांड सप्लाई पे हो रहा है. देखो कि बिजनेस क्या है, क्या काम कर रही है कंपनी, कैसा पोटेंशियल है, फ्यूचर में बढ़ सकती है कि नहीं, डिमांड है कि नहीं. चल सकता है फिर तो आपके लिए वो. दैट वर्क्स. इन ट्रेडिंग विद दिस टेक्निकल एनालिसिस एंड स्टडी ऑफ प्राइसेस, यहाँ पे हम लोग डिमांड सप्लाई को देखते हैं. हम लोग बस सुनना चाहते हैं कि कोई तो एक बार आके चिल्ला के बोले कि मैं टमाटर 40 रुपये किलो में लेने के लिए तैयार हूँ. और हम लोग क्या करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, जिसकी मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ, हम लोग 20 रुपये में उसको पहले ले लेते हैं. ऑनेस्टली दिस हैपन्स बिकॉज इन टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस जिसको बोलते हैं, आई विल शो यू अ चार्ट हियर. लुक एट दिस एग्जांपल. ये रिलायंस का शेयर है, देखो बढ़ रहा है, ठीक है. ये नीचे डेट लिखा हुआ है 3 अप्रैल 2020. राइट साइड में प्राइस लिखा है गाइस 1000. आज क्या तारीख है? 17 सितंबर 2020. प्राइस है 2300. प्राइस बढ़ गया है ना रिलायंस का. किसी न किसी ने तो स्क्रीम किया था. स्क्रीम कौन कर रहा था? फेसबुक, अमेजॉन, गूगल. सुनते आ रहे हो ना, न्यूज़ में सुने होंगे, ये सब लोग बाय करेंगे बोल रहे हैं. अब इतने बड़े लोग बाय कर रहे हैं तो हम लोग को तो बाय करना पड़ेगा यार. वो लोग ज़्यादा सोच समझ के बाय करते हैं, हम लोग को तो ज़्यादा आता नहीं है. बट मुझे एक दिन पहले पता था फेसबुक के, कि फेसबुक की न्यूज़ आने वाली है. आई डिड इट. यू कैन डू इट. इट्स प्रैक्टिकल 100%. मतलब लॉजिकल है, कोई भी मैं इलॉजिकल बात नहीं करूँगा आपके साथ में यहाँ पे.
देयर इज़ नथिंग ड्रीमी अबाउट हियर, एवरीथिंग इज़ प्रॉपरली टेक्स्ट बुक्स नॉलेज। उसको मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बनाया हूँ ओवर द टाइम अपने एक्सपीरियंस के साथ में। आई एम रेडी टू शेयर विथ यू माई रोल दोनों में। आई कैन गाइड यू इन पिकिंग शेयर्स फॉर द इन्वेस्टमेंट। ऑनेस्टली आई विल बी हैप्पी टू, अगर आपको इन्वेस्ट करना है, किसी दो लोग का फाइनेंशियल विजडम बढ़ा लूंगा, इट्स मोर अ मेंटल पीस फॉर मी। ट्रेडिंग आई कैन फुली ट्रेन यू। स्मॉलेस्ट प्राइस चेंज, ये जो एक दिन में हो रहा है, टू द बिगेस्ट मार्केट टर्न्स, एक महीने में हो रहा है। आई कैन ट्रेन यू फॉर बोथ। कंक्लूजन क्या है गाइस? इन्वेस्टिंग ईजी है, छोटा छोटा अमाउंट देना है एसआईपी थोड़े थोड़े टाइम पे यार। ज़्यादा मेहनत क्या है? मैं आपको बोलूँ महीने के एंड में मेरे को 2000 दे दो, या मैं आपसे सीख लेते हैं एक बार कि इन्वेस्टिंग कैसे करते हो, 2000 महीने के एंड में लगा लो। कुछ हार्ड बोला मैंने? नहीं। ट्रेडिंग चार्ट वार्ट थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट वो पैसा देगा आपको, रेगुलर कैश फ्लो देगा। एज आई सेड, महीने का 2 लाख, 1 लाख 30 हज़ार, जिसकी जितनी डिमांड वैसा उसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बट इट्स पॉसिबल। आई कैन डू इट। मैंने पूरा एक ट्रेड एंड ट्रैवल बना लिया उसके ऊपर में, कि मैं माउंटेन से ट्रेड कर सकता हूँ, मैं बीच से ट्रेड कर सकता हूँ, मैं सोऊंगा, मेरे इन्वेस्टमेंट बढ़ सकते हैं। आई हैव प्रैक्टिस, ठीक है, मैंने मेहनत की है 1 साल, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ में आज आपके सामने खड़ा हो सकता हूँ कि जॉइन मी, हैव फेथ इन मी, फॉलो द प्रोसेस एंड यू विल सी फॉर योर सेल्फ। ठीक है, मैं कोई सर्टिफिकेट साइन करके नहीं दे रहा हूँ आपको, बट आई विल जस्ट आस्क यू, अगर आपने मुझे देखा है बढ़ते हुए, तो थोड़ा टाइम और मेरे साथ रह के भी देख लो एक बार। हैव फेथ। आई थिंक दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। काफ़ी लोग भरोसा तोड़ते हैं, हो सकता है मेरे से कभी गलती भी हो जाए, वेरी सॉरी फॉर दैट, अभी से खेद है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। आई टीच यू ऑनेस्ट, दैट्स आई कैन डू। If you will learn honestly and work honestly, you will get your returns. That I can promise. Please. अदर फॉर्म्स ऑफ इनकम कुछ और भी होते हैं, एक डिविडेंड इनकम होता है और एक बोनस इनकम होता है। चलो इस पर भी बात करते हैं। आपने रेंट पे घर चढ़ाया हुआ है, आपको हर महीने रेंट मिलता है ना घर से, एक्स्ट्रा घर है आपके अलावा, हो सकते हैं लोगों के पास 2 शहर में घर होते हैं, दोनों में तो रहते नहीं, एक में रहते हैं, दूसरे को रेंट पे दे देते हैं, अपने घर के ऊपर एक और फ्लोर बना देते हैं, उसको रेंट पे दे देते हैं। घर बनाना ऊपर घर खरीदना इन्वेस्टमेंट हो गया, रेंट उसमें से रेगुलर कैश फ्लो हो गया। ये जो रेंट है ना, यहाँ पे डिविडेंड बन जाता है शेयर्स में। आप जब कोई शेयर खरीदते हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, वो शेयर एनुअली आपको कुछ पैसा ऐसे ही देता है, डिविडेंड, रेंट। जैसे रेंट आपको ऐसे ही मिल रहा है ना, यूज कर रहे हैं कोई दूसरे लोग, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ऐसे ही आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया ना, तो कंपनी आपको डिविडेंड देती है। आई नॉट गोइंग टू लॉजिक कितना देती है, कैसे देती है, क्या होता है, उसके भी कई ब्रॉड माइंडेड फैक्टर्स होते हैं। ऑनेस्टली एक वेबिनार उसके लिए सफिशिएंट है ही नहीं। आई कैन गो ऑन एंड ऑन कि डिविडेंड से कितने पैसे बने लोगों के आज तक। इफ आई गिव यू अ रफ नंबर, मोर देन 3 करोड़। ठीक है, मूट मी ऑन दिस, पर्सनल में कुछ कभी मैसेज करना, आई कैन मूट यू एंड डिबेट यू ऑन दिस कि इतने पैसे एक्चुअली में रेंट से बन गए क्या। यस, इट्स पॉसिबल। मूविंग ऑन, बोनस इनकम। बोनस इज जस्ट लाइक, हम लोगों ने, जो लोग बायोलॉजी स्टूडेंट होंगे वो लोग माइटोसिस पढ़े होंगे, चीज़ें दो हो जाती है ना, एग्जैक्टली बोनस वही है। आप एक शेयर रखे हुए हो, 2 साल के बाद में कंपनी आपको बोलती है ये लो एक और ले लो मेरे से, दैट इज बोनस एक्चुअली। फ्री में एक और शेयर मिलता है आपको, कुछ नहीं कर रहे हो आप, आपने बस 3 साल रखा है ना, उसका परिणाम है, ये रिजल्ट है कि कंपनी आपको शेयर दे रही है बोनस में। कितना रेगुलरली इशू होता है बोनस? काफ़ी रेगुलरली, बहुत ईजिली, हर 3-4 साल में या 5 साल में कंपनी बोनस इशू कर देती है। और बोनस ऐसे नहीं मिलता है कि एक रखे हो तो एक ले लो, कभी कभी ऐसा होता है एक रखे हो 3 ले लो, एक शेयर के बदले 3 शेयर और मिलेंगे आपको, एक शेयर के बदले 2 शेयर और मिलेंगे आपको, दैट इज बोनस। डिविडेंड बोनस समझ में आया, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग समझ में आया, इन्फ्लेशन समझ में आया, एसेट लाइबिलिटी समझ में आया, शेयर क्या होता है समझ में आया, शेयर मार्केट क्या होता है समझ में आया, शेयर बढ़ता क्यों है घटता क्यों है रेवेन्यू मॉडल से समझ में आया, अननेसेसरली बढ़ क्यों घट क्यों जाता है, डिमांड सप्लाई, फियर ग्रीड, समझ में आया। मैंने इतने टॉपिक्स कवर किए हैं गाइस, दिस इज ऑल कैपिटल मार्केट। मैंने आपको एक बार भी कोई हाइपर टर्म नहीं बोला है, मैंने कुछ और भी एकदम ऐसे अंदर की बात कहीं पे निकाल के नहीं बोली ना, मैंने कोई आपको मैजिक ट्रिक दिया है। जो चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल है मैंने आपको वही बताया है। ट्रेडिंग से जो रिटर्न पॉसिबल है मैंने आपको वो दिखाया, इन्वेस्टिंग से जो रिटर्न पॉसिबल है मैंने वो आपको दिखाया। अगर वो चीज़ें पास्ट में हुई हैं तो वो चीज़ें आज भी पॉसिबल है। आपकी एज अभी भी, हाँ ले,
अच्छे हेल्थ वेल्थ में रहना, थोड़ा सा अपने आप को संभाल के, आई कैन से 50 ईयर्स 60 ईयर्स सब जी जाओगे, ठीक है। तो 50-60 साल में तो काफ़ी पैसे बना लोगे अगर आज इस वेबिनार से कुछ लेकर जाते हो तो, ठीक है। सी दिस, you cannot go back and change the beginning as I always say, but you can start now to change the ending. जो हो चुका है आप उसे नहीं बदल सकते आप, पर अगर आज आपने कुछ सीख लिया है ना, तो कल जो होने वाला है आप उसमें ज़रूर कोई एक डेंट इम्पैक्ट ला सकते हो। डिपेंड करता है आज आप कितना एफर्ट डालोगे, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कुछ भी हो, ठीक है। दैट वॉज ऑल, थैंक यू फॉर योर टाइम, आई होप आई हैव मेड सम रिपल इन योर थॉट प्रोसेस। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा ईमेल मेंशन्ड है, एक परफॉर्मेंस लिंक है मेरी ड्राइव में, आप जाकर देख सकते हैं अगर आपको चेक करना है तो। दैट वॉज ऑल अबाउट कैपिटल मार्केट ऑनेस्टली। मैं एक्सपेक्ट किया था 1.5 घंटे लग जाएंगे, आई थिंक 1 घंटे में फिनिश हो गया। इफ़ यू हैव एनी डाउट, कोई क्वेश्चन है, कोई मिथ है, कोई सजेशन है, कुछ पूछना है, कुछ समझना है, और आपने कहीं और से कुछ सीख लिया, आई एम हैप्पी टू डिस्कस, प्लीज एनलाइटन मी। I will appreciate if you can say something. Any